hope all of you are doing well. Welcome to TS Sudhi, the channel where we focus on English language and English grammar. This is part 2 of the idioms and phrases one, right? And if you are preparing for CUET or SSC, yeah, banking, yeah, police examination, yeah, stenographer examination, or even for examinations related to BITSAT and Manipal and any of the school exams, of course, this is the channel as far as English is concerned. So in this video, we are dealing with verbal ability, idioms and phrases part 2. I hope you have already seen part 1 of this one. Okay, and we'll be doing many such videos. The first question, the show must go on. Basically, what does it mean? Does it mean A, to show off one's prowess, कि थोड़ा दिखावा करो? Second one, being modest. Or third one, an event or activity must continue even if there are problems. The correct answer is option C, and the event must continue even if there are problems. Okay, how do you use this kind of a sentence in the this kind of a phrase, idiom in the sentence? The industrialist has passed away. कि industrialist उनकी मृत्यु हो गई है, but the show must go on. Movie के बारे में बोलते हैं ना, the show must go on, and therefore his son must succeed him as a chairman. कि chairman की मृत्यु हो गई है, but the show must go on. काम तो ठप नहीं हो सकता ना. So that's how the show must go on idiom का इस्तेमाल किया जाता है. A shoulder to cry on. ये तो हिंदी में भी है, नो, उसके कंधे पर रोया. इसका मतलब क्या है? Spend time in the gym, or when someone spreads baseless rumors about you, or someone who gives you sympathy when you are upset. Correct answer, please write 2 का A, B या C होगा. Please write in the comment box. The correct answer is, pause करके लिख लीजिए, notes भी लिख लीजिए ताकि आपको आसानी हो. आपके बहुत सारे बढ़िया notes हो जाएंगे idioms और phrases के बारे में. The correct answer is C, someone who gives you sympathy when you are upset. When his mother passed away, his best friend gave him a shoulder to cry on. ऐसा नहीं कि मैं कंधा निकाल के दूसरे को दे रहा हूं, वो मेरे कंधे पर रोया. That's how the phrase idiom comes. A shot in the dark. इसका क्या मतलब हुआ? A wild guess, तुक्का मारना. When it is a moonless night, कि चांद नहीं निकला तो उसको shot in the dark बोलते हैं. या someone who is an expert sharpshooter. Correct answer is A, तुक्का मारना. Okay, a wild guess when you have no information about something. कुछ मालूम नहीं है लेकिन तुक्का मारा और कभी कभी शॉट इन द डार्क सही लग जाता है. आई हैड नो क्लू अबाउट द क्वेश्चन. मेरे को क्वेश्चन के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था, लेकिन मैंने तुक्का मारा एंड मेरा तुक्का सही हो गया. सो द शॉट इन द डार्क, द तुक्का वाज करेक्ट. तुक्का, शॉट इन द डार्क याद रखना. ए सिंकिंग फीलिंग, इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये एसओएस है जो कि कैप्टन ऑफ अ सिंकिंग, कोई नाव, कोई जहाज डूब रहा है, कैप्टन एसओएस भेजता है, अर्जेंट मैसेज भेजता है कंट्रोल टावर को, क्या उसको सिंकिंग फीलिंग बोलते हैं? या ए फीलिंग दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन? या सी, व्हेन यू आर ड्राउनिंग, जब आप डूब रहे होते हैं, क्या उसको सिंकिंग फीलिंग बोलते हैं? कंफ्यूजन हो सकता है आपको इसमें. सी आपको सही लगेगा, व्हेन यू आर ड्राउनिंग, बट द करेक्ट आंसर इज B, a feeling that something bad is going to happen, कि कुछ गलत, कुछ खराब, कुछ नेगेटिव होने वाला है. I'm having a sinking feeling, the kind you have when you take an exam you have not prepared for. एग्जाम में गए, प्रिपरेशन नहीं की है, मालूम है कि गंदा पेपर होगा, so I'm having a very sinking feeling कि मैं फेल हो सकता हूं. So that something bad is going to happen, right? वो कभी कभी लगता है ना कि कुछ लग रहा है, कुछ ठीक नहीं हो रहा है. I'm not having a good feeling about it. A sitting duck, बतख. The meal prepared by an expert chef, ये क्या किसी delicacy का नाम है? When a batter gets out for a duck, 0 in cricket, क्या उसको sitting duck बोलते हैं? Or something or someone that is easy to attack or criticize. 5A, B या C, कौन सा होगा? क्या लगता है आपको? The correct answer is 5C, something or someone that is easy to attack or criticize. With no weapon to defend himself from the heavily armed terrorists, the constable was a sitting duck. Constable के पास सिर्फ लाठी थी, कोई बंदूक नहीं थी. वहां आतंकवादियों के पास बंदूकें थी, AK-47 थी. He was a sitting duck. सीधा उन्होंने आके कांस्टेबल को मार दिया. He was a sitting duck. He could not defend himself. Okay, he was easy to be attacked in this case. Yeah. he was a sitting duck, उसको क्रिटिसाइज करना काफी आसान था. उस सेंस में भी इसका इस्तेमाल होता है.
सिटिंग ऑन ए गोल्ड माइन, अभी सिटिंग के साथ थोड़े किए हैं मैंने। सिटिंग ऑन ए गोल्ड माइन का क्या मतलब हुआ? ओन समथिंग दैट इज वेरी वैल्यूएबल। व्हेन योर फैमिली इज इन द गोल्ड बिजनेस, अगर आप सोचेंगे यार यही होगा करके तुक्का मारेंगे, शॉट इन द डार्क मारेंगे, तो कभी कभी आप 6B भी लिख सकते हैं, व्हेन यू बाय समथिंग वेरी प्रेशियस। लेकिन ये शॉट इन द डार्क 6B ठीक नहीं होगा, बिकॉज द करेक्ट आंसर इज 6A, ओन और हैव समथिंग दैट इज वेरी वैल्यूएबल। When property prices in our area, हमारे एरिया में पास में मेट्रो स्टेशन आ गया, ओके, यहाँ के प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ गए, या नया एयरपोर्ट पास में आ गया, ओके, जैसे नवी मुंबई में एयरपोर्ट पास में आ रहा है, ओके, नवी मुंबई एरिया में, वहां के प्रॉपर्टी प्राइसेस काफी लोगों ने खरीदे हैं, बोलते रहते हैं कि 3 साल बाद प्रॉपर्टी प्राइसेस सब ऊपर चले जाएंगे, राइट, जब वहां से ऑपरेशनल हो जाएगा। सो द पीपल देयर आर सिटिंग ऑन ए गोल्ड माइन, यू नो, कि हमने 50 लाख का घर खरीदा था, अभी उसकी कीमत 2 करोड़ है, राइट, दैट काइंड ऑफ अ सिटिंग ऑन ए गोल्ड माइन, ओके। इन सभी इडियम्स का आप इस्तेमाल कीजिए अपने सेंटेंस फॉर्मेशन में, ताकि आप इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर वोकैबुलरी। सिटिंग प्रिटी, व्हेन यू रिसीव कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, टू बी इन ए गुड सिचुएशन, और व्हेन यू विजिट द ब्यूटिशियन। अरे वाह, सी होगा, बिल्कुल करी, शॉट इन द डार्क 7C, गलत, बिल्कुल गलत, बिकॉज द करेक्ट आंसर इज बी, to be in a good situation, being comfortable even when you have good money, they say he's sitting pretty. Even when you are like, for instance, India ने 500 रन बना दिए for 4 wickets down, India was sitting pretty, you know, कि विकेट्स भी काफी थे, स्कोर भी काफी था, अभी डिक्लेयर करके ऑपोजिशन को बैट करके उनको जल्दी से आउट कर सकते हैं, राइट। सो इंडिया वाज सिटिंग प्रिटी। दे हैव स्टॉक्ड अप ऑन ग्रोसरी, लॉकडाउन हुआ उससे पहले काफी सारे वेजिटेबल्स, बिस्किट्स, ग्रोसरी सब खरीद के रख लिए घर पे, तो अभी 1 हफ्ते के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। दी मल्होत्रास वर सिटिंग प्रिटी, यू नो, वो आराम से थे, उनको कोई दिक्कत नहीं थी। दैट इज हाउ सिटिंग प्रिटी इज यूज्ड, ओके। अंडर द सन, अंडर द सन का क्या मतलब हुआ? व्हेन यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ, एवरीथिंग अंडर द सन दैट इज पॉसिबल व्हेन यू सफर अ सनस्ट्रोक। मैं वही बोल रहा हूं, ऑप्शंस में एक या दो ऐसे आएंगे जो कि आपको लगे कि यही सही है, तो सोच समझ कर सतर्क रहें, सावधान रहें ऐसे ऑप्शन से, ओके, जो क्राइम पेट्रोल में बोलते हैं ना। करेक्ट आंसर इज बी, एवरीथिंग अंडर द सन दैट इज पॉसिबल। कुछ लोग होते हैं ना ट्विटर पे या टीवी पे, दिस एनालिस्ट हैज एन ओपिनियन ऑन एवरीथिंग फ्रॉम पॉलिटिक्स टू स्पोर्ट्स टू क्रिकेट टू वेदर टू सोशल इश्यूज, एवरीथिंग, ओके, एवरीथिंग अंडर द सन, यानी कि दुनिया में कुछ भी हो उस पर कमेंट्री करने के लिए ये बंदा पहुंच जाएगा। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा यहां पर, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं, ओके, जिनको कि सबके बारे में, सब चीज के बारे में जानकारी होती है, नहीं भी होती है, फिर भी आकर बात करते हैं या ट्वीट करते हैं। ए गट फीलिंग, ए फीलिंग दैट यू आर श्योर यू आर राइट बट कैनॉट एक्सप्लेन व्हाई। होती है ना कभी कभी, मुझे लगता है कि सही हूं बट आई कैनॉट एक्सप्लेन कि व्हाई डू आई फील लाइक दिस, बट आई थिंक आई एम राइट। When you have a stomach ache, when you feel gutted, gutted means you're feeling miserable, when you're feeling miserable about something. Correct answer is A feeling that you're sure you are right but cannot explain why. My gut feeling is that she's lying about her, मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन क्यों मुझे ऐसा लगता है मैं नहीं बता सकता, लेकिन this is my, it's like my sixth sense, मुझे ऐसा लगता है, that's my gut feeling, my sixth sense is that she's lying about this project. A hue and cry, the last one, a hue and cry, when people cry in an artificial manner, when people cry at someone's death, when people complain noisily, शोर शराबा मचाकर कंप्लेन करते हैं। 10A, B या C कौन सा ठीक रहेगा? The correct answer is 10C, when people complain noisily. He raised a hue and cry over the neighbor occupying his car parking area. Okay, कि पड़ोसी ने आके कार पार्क एरिया पे कब्जा कर लिया या उसने अपनी गाड़ी रोक ली तुम्हारे कार पार्किंग एरिया में, सो यू रेज अ ह्यू एंड क्राई कि हाउ डेयर यू डू दैट, और आर्ग्यूमेंट हो गया, झगड़ा हो गया। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड अ ह्यू एंड क्राई। आई होप मजा आया, कुछ नया सीखने को मिला, ओके। प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, और अपने दोस्तों को बताइए ताकि और लोगों को भी इससे फायदा हो। नोटबुक में सारे नोट कर लीजिए ताकि आपको आसानी हो रिवाइज करने में। कोई भी आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो उसमें ये तो आएगा ही, ताकि आपको सभी फ्रेजेस, इडियम्स को डील करने में आसानी हो। थैंक यू वेरी मच। आई विल मीट यू नेक्स्ट इन पार्ट 3। टाटा, बाय बाय।